सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बड़े गैप के बाद हम वापस आ रहे हैं क्योंकि मेरा एसओपीएस एग्ज़ाम के लिए जो एलडीसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उसके लिए मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती रहती हैं और अब मैंने ऑनलाइन भी उसमें स्टार्ट कर दिया है सो दैट द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू गेट द क्लासेस वो भी मेरे यूट्यूब चैनल से समझ सकते हैं। उसका शेयर करूंगी मैं लिंक आपको, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी इन गवर्नमेंट जॉब देन यू कैन अवेल दोज लिंक्स। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करके उसे बहुत ईजिली समझ सकते हैं और उसमें कोई बोर्डम आपको महसूस नहीं होगी क्योंकि वो बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, एंड सेकेंडली अब हम जल्दी से करेंगे ताकि एसएससी और यूपीएससी दोनों के लिए आपकी प्रिपरेशन हो जाए। एंड वेरी सून आई विल गो फॉर द अदर डिफिकल्ट टाइप ऑफ डिक्टेशंस ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स ऐसे मिल सकें जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे एंड योर जो हाथ है आपका इट शुड बी इन फ्लो ताकि वहाँ पर रुके नहीं। ठीक है, और जो भी मैं गलतियाँ आपको बताऊंगी, जो एरर्स मिस्टेक्स होंगे और कुछ लाइंस में आपको क्लियर करूंगी, वो समझाने से आप वहीं पर यू विल बी एबल टू गेट द रेक्टिफिकेशन इन द एग्जाम ओनली परफेक्टली। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन नंबर 243 एंड वॉल्यूम 12। ठीक है, चलिए बी रेडी, 5 seconds, 4, 3, 2, 1, start. Sir, I rise to present the budget for the year 1984-85. The budget has been formulated against the background of strong recovery in national income and agriculture and an equally impressive improvement in our balance of payments. These and other developments in the economy have been covered in detail in the economic survey presented to the House a couple of days ago. I shall therefore be brief in reviewing the current economic situation. In order to fulfill our social commitments and protect jobs, government had to take over a large number of sick units and sustain them through injection of fresh resources. While some of them have turned the corner, a large number of them continue to incur losses. The time has come to undertake a careful review of the performance of sick drain on our resources. This the government proposes to do. Economic viability must be the principal test for the survival of an enterprise. Honorable members will recall that when our government took office in January 1980, an important task before us was to revitalize the planning process and to give a new thrust to the programs of development. I am happy to say that in the last 4 years, we have been able to achieve an unprecedented increase in the tempo of public investment. Within this aggregate, plans of individual states show a varied picture. Some states have managed their finances well. They have been able to raise additional resources and effectively utilize these to implement adequately sized plans, providing development and growth to their people. Unfortunately, some states, for reasons of their own, have used their resources for various other purposes. They have not invested their resources, including additional resources mobilized for development, and have also resorted to large overdrafts on the RBI. Unfortunately, despite these measures, some states continued to rely heavily on overdrafts even after March 1982. Their proposed deficits
at the end of March 1984 would have harshly affected the size of their plans if these deficits were adjusted against next year's plan as per normal practice. In considering the ways of overcoming this problem, I have found myself in a predicament. On the one hand, no finance minister of the country can remain unconcerned about the size of a state's plan. On the other hand, if assistance is extended to defaulting states, the well managed states can legitimately complain that they have not got their just rewards from the center for their better performance. For those states which have managed their finances well, I am working out a suitable scheme to provide some additional assistance to them in 1984-85. This is only just and appropriate. Mr. Speaker, sir, I am sure that the House will agree with me that despite severe resources constraints of its own, the central government has done the maximum that it can to solve the state's problems. The rest, however, is up to them. In the last 4 years, the present government introduced a number of schemes for the benefit of the weaker sections of the society, particularly in the rural areas. These include the Integrated Rural Development Program, the National Rural Employment Program, and the two new programs announced by the Prime Minister on 15th August 1983, namely the Rural Landless Employment Guarantee Program and the scheme for providing self-employment opportunities to the educated unemployed. Each of these programs is designed to create opportunities for employment and income generation for particular target groups while also creating productive assets. Finally, I should mention that the incentive schemes for better performance in selected areas initiated in 1983-84 will continue in 1984-85 also. As the House is aware, these schemes are designed to improve the functioning of the electricity boards and provide further impetus to the programs for small and marginal farmers, rural water supply schemes, environmental improvement in urban slums, construction of field channels in command area development projects, and adult education for women and elementary education for girls. A lump sum provision of rupees 200 crores is being made for this purpose. Lest the honorable members take me to be a magician who can do so much with so little, I hasten to clarify that the incentive scheme is designed to provide additional resources linked to performance for specified schemes. There are, of course, also separate substantial allocations for each of these schemes. I have only briefly touched upon the main priorities and objectives of the annual plan for 1984-85. In order to provide the maximum possible outlay for the 7th 5-year plan, I have taken special care to ensure that non-plan expenditure is kept at the minimum.
However, certain increases in this expenditure are necessary and unavoidable. Stop. जब भी आप लिखेंगे तो डिक्टेशन जैसे ही एंड होती है, लास्ट लाइन मस्ट यू शुड फर्स्टली राइट इन योर नोटबुक। उसी समय आपको डिक्टेशन के बाद लास्ट लाइन को जरूर लिखना है, क्योंकि जब हम सारा रीड आउट करते हैं तो अंत तक आते आते उसके वर्ड्स हमारे मिस हो सकते हैं। बट लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसको करके अब हम चलते हैं अपने डिफिकल्ट वर्ड्स की ओर, जिसमें आपको मैं आउटलाइंस समझाती हूँ। ठीक है, ओके, नाउ हियर वी आर गोइंग विद द डिफिकल्ट वर्ड्स। सबसे पहला देखो, ये वर्ड्स आपने अच्छी तरह समझना है। मैं आपको शॉर्ट आउटलाइंस बता रही हूँ। जैसे नेशनल इनकम, तो आपको एन डालना है, एन के साथ इनकम का इन और के जोड़ दो, इसको आपने अबव द लाइन रखना है। सो नेशनल इनकम हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, बड़ा 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 नेशनल या अलग से नेशनल इनकम ऐसे लिखने में बहुत टाइम जाएगा। सो डोंट यूज दिस। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है वायबिलिटी। अब वायबिलिटी में मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, वायबिलिटी दिस वायबिलिटी में आपको क्या करना है कि आपको अपना ये जरूर देना है, क्योंकि अगर आप वोवल दोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट द वर्ड इमीडिएटली। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, देखो आगे वर्ड आता है अवेलेबिलिटी। जैसे अब ये सेम होते हैं जी, ठीक है, हमें पता है कि ये सेम होते हैं। अवेलेबिलिटी ऐसे होता है, यहाँ पे इसको बिंदी दो, आगे और पीछे बिंदी दो, अवेलेबिलिटी लिख दो। वायबिलिटी में आपने क्या किया, आपने वायबिलिटी में वोवल दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपने दे दिया वोवल कौन सा, ए का। तो ये ए का वोवल अगर आप सिंगल भी दे रहे हो, ठीक है, अगर आप सिंगल भी दे रहे हो तो भी चलेगा, क्योंकि आपने ए की साउंड को हमेशा अपने अंदर बना के रखना है। ठीक है, तो ए की साउंड को आपने हमेशा बना के रखना है। चलिए उसके बाद आगे वर्ड आता है कमिटमेंट्स। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले आपने ड्रॉ कर दी लाइन, अब टी को नीचे तक ले जाओ, मेंट्स जोड़ो, ऊपर इसके लगा दो बिंदी, कमिटमेंट्स। नेवर लीव दिस वॉवल ऑफ बिंदी जरूर देनी है आपने। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। पता है ना आपको अनप्रेसिडेंटेड क्या होता है। ठीक है, तो ये वर्ड होगा आपका प्रेसिडेंटेड। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका अनप्रेसिडेंटेड। तो आपने कैसे लिखा इसको, तो बेटे मैं दोबारा से आपको बताती हूँ यहाँ पे आपने कैसे लिखा। सो फर्स्ट होल्ड दिस। ठीक है, अब हम लिखते हैं अनप्रेसिडेंटेड, ये है वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी यहाँ एन डालना है। ठीक है, तो ये ऊपर आपने इसका वोवल जरूर अन का डालना है, क्योंकि इससे आप कभी गलती नहीं करोगे। नंबर 2, अनप्रेसिडेंटेड के स्पेलिंग कैसे आपने याद करने हैं, याद रखना है CE है इसमें, अनप्रेसिडेंटेड में CE ऐसे डालने से करी कराई खत्म। चलिए, तो इसलिए लर्न करना है आपको लिख के 10 बारी। उसके बाद रिवाइटलाइज। ठीक है, तो क्या रिवाइटलाइज, ये पूरा क्यों लिख रही हूं मैं, इसमें कई लोग कैसे लिखते हैं, कई लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये वाइटलाइज ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये लिखने से क्या आपके सामने लाइफ का आई का वोवल देने से आपको बहुत ब्यूटीफुली इट विल बी इन योर माइंड। सो यूज दिस आउटलाइन। ठीक है, तो रिवाइटलाइज हो गया। उसके बाद हम आते हैं आपके पास नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज टेम्पो। टेम्पो को मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि इसको इतना ना लिख कर ना इसको पो आगे ले जाओ, टेम्पो। क्यों, तो और उसके बाद ओ का वोवल डाल दो। इससे क्या होगा ना, आपका ये वर्ड कभी बर्बाद नहीं होगा। तो इसलिए टेम्पो को ऐसे लिखा करो। ठीक है, अगर इफ यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट कि हाँ जी मैं तो भागा के लिख सकता हूँ, एंड नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ, क्योंकि हम गलतियां करते ही हैं। और जब तक आपकी जॉब नहीं लगती, जब तक आप अपनी ऊंचे ओहदे पे नहीं पहुंचते, नेवर थिंक कि हाँ जी मैं तो बड़ा होशियार हूँ। नहीं है हम होशियार। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने वर्ड्स छापोगे, पूरे पेज पे लिखा करो वर्ड्स, ताकि आपको पता लग जाए। अब आता है वेरीड को लिखो ऑन द लाइन, आर लिखो डी ऑन द लाइन को यहाँ पे ए की बिंदी बीच में डालो, ताकि आपको, क्यों मैं ऐसे कह रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे वी के बाद ए है। ठीक है, नंबर 2 में यहाँ पे आपको एक और भी वर्ड समझा सकती हूँ। ये जो वर्ड आता है एक वेरी, ठीक है ना, वेरी वर्ड जो आता है, तो बेटे जरा इसको ध्यान से समझ लो, ये आप फ्रॉम को ही वेरी पढ़ते हो। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना। वेरी के लिए एक बहुत ब्यूटीफुली आपने क्या करना है, कट बीच में डालना है। ये आ गया आपका वेरी। ये कभी भी इट विल नेवर बी लॉस्ट इन योर डिक्टेशन। ठीक है, अगला वर्ड आता है एग्रागेट। एग्रागेट में सबसे पहले ये समझ लो, एग्रागेट में डबल जी आता है, तो इस एग्रीगेट में डबल जी आता है, तो आपने गलत नहीं करना। ठीक है, इसको आपने कैसे करना है, यहाँ पे दोबारा से देखो, यहाँ पे कर लेते हैं, ये एग्रीगेट। ठीक है ना, यहाँ पे आपने ए की बिंदी लगानी है। ठीक है,
और ए की बिंदी लगा के तब आपने इसमें आपने लिखना है गेट, ठीक है, एग्रीगेट, ताकि आपको पता लग जाए। एग्रीगेटेड आए तो यहाँ से काट दो, कोई बात नहीं, एग्रीगेट, एग्रीगेटेड, ठीक है। अब आता है आपका आगे एडिशनल रिसोर्सेज। बहुत ब्यूटीफुल आउटलाइन है। एडिशनल लिखो, इसको रिसोर्सेज से काट दो, बीच में बिंदी भी डाल सकते हो। क्यों मैंने बिंदी डाली, अब वो मैडम की बात को अच्छी तरह समझो। एडिशनल लिखो, रिसोर्स है तो एक है, रिसोर्सेज है तो बिंदी है, और यहाँ पे एक की बिंदी आपने हमेशा देनी है। तो एडिशनल रिसोर्सेज है तो मोटा बिंदु डाल दो, और सिंगल वाला है तो ऐसे। अब जैसे आता है मटेरियल रिसोर्सेज तो मटेरियल डाला, इसको रिसोर्सेज से काटा तो सिंगल है, और मटेरियल रिसोर्स है, सिंगल रिसोर्स है तो यहाँ पे कर लो, कोई बात नहीं, छोटी बिंदी लगा लो। बिना बिंदी के यानी कि आपके पास आ जाता है बिना बिंदी के SE, और बिंदी के साथ आपका सॉरी, हाँ ठीक है ना, रिसोर्स में आपका सॉरी CE, और इसमें आ जाता है CES, ठीक है। तो ज्यादा आते ही आपको बिंदी जरूर लगानी है। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये ऐसी आवश्यकताएं हैं नीडफुली, इनको स्पीड से, मैंने स्पीड से बड़े लेवल का इसका एग्जाम क्लियर किया है, और आई वॉज ऑलवेज विद माई वॉवल्स। व्हाट आर द वॉवल्स? वॉवल्स आर योर जस्ट योर बैसाखियां, इट विल नेवर लीव यू हैंडीकैप। तो हैंडीकैप नहीं होना आपने, ठीक है। उसके बाद आगे देखो आप कि, चलिए अब हम आगे चलते हैं अगली वाली, मोबिलाइज, ठीक है, ओके। पहले हम आपको बताते हैं मोबिलाइज। ये आई का वॉवल लिखो, ओ का वॉवल डाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपने ये लिख दिया मोबिलाइज, ठीक है। मोबिलाइज्ड, ST की चाप, ठीक है। ये जैसे ही आप चाप दोगे तो यहाँ पे लाइज्ड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ओवर ड्राफ्ट्स, ठीक है। यहाँ पे बिंदी जरूर डाल देना प्रिय, बिंदी इसलिए डालोगे क्योंकि वो आपको समझ आ जाएगा कि ओवर ड्राफ्ट्स में ड्राफ्ट्स है, कुछ और वर्ड से हमें नहीं जोड़ना, ठीक है। ओवर तो लिखते ही हो। अब उसके बाद आपने लिखना अनफॉर्चुनेटली। देखो फॉर्चुनेटली वर्ड आता है तो आपने क्या कर देना है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपने फॉर्चुनेटली, जरा रुक रहा है एक सेकेंड, आपको लेट इट बी इरेज्ड, ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम लिखेंगे अनफॉर्चुनेटली, बस ये आपका हो गया वर्ड, ठीक है। अगर फॉर्चुनेटली आ गया, ये ऐसे कर दो, FRNTLY, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्चुनेटली हो गया, ओके। इसको मत देख लेना कुछ, ठीक है, फॉर्चुनेटली हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आपको अच्छी तरह समझती हूँ। यहाँ पे देखो दिस मेजर ऑन द लाइन पे, और अगर आपके पास आ जाता है दीज मेजर्स तो ये बिलो द लाइन पे, सिंपल, ठीक है। इसको इकट्ठा करना बहुत आसान है और कर सकते हो आप, ठीक है। अब आता है यहाँ पे हार्शली, तो यहाँ पे एस करके H की टिक डाल के आपने अबव द लाइन करके ऐसे डाल देना है हार्शली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे वर्ड आता है ओवरकम, ये आ गया आपका ओवरकम, ठीक है। और ओवरकम के बाद आप डालेंगे ओवरकमिंग। ओवरकमिंग कैसे डालेंगे, बस कुछ नहीं करना, इंक डालो, ओवरकमिंग हो गया, खत्म, प्रैक्टिस, ठीक है, डू प्रैक्टिस। अब ये अगला वर्ड आपके लिए आता है प्रेडिकामेंट। तो देखो जो मुश्किल वर्ड आए, इट शुड ऑल्सो बी इन योर माइंड, इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि ना तुम्हारे लिए जितना वर्ड नोन टू होगा तुम वहां पे उसकी आउटलाइन बड़ी ब्यूटीफुली बना के आओगे। अगर नहीं होगा इट विल बी अननोन, तुम्हारे हाथ कांपने लग जाएगा, अरे और ये क्या हो गया, हमें तो मीनिंग तो बहुत दूर की बात है, तुमने सुना ही नहीं। अब हमने सुन भी लिया तो मीनिंग से वो और दिमाग में पक्का हो जाता है। तो क्या है प्रेडिकामेंट? एन अनप्लीजेंट एंड डिफिकल्ट सिचुएशन दैट इज हार्ड टू गेट आउट ऑफ, दैट इज मेस। यानी आप बाहर नहीं निकल पाते, एक ऐसी अनप्लीजेंट सिचुएशन है जिसे हम कहते हैं प्रेडिकामेंट। तो पर के, ठीक है, पर बना, फिर के डाला, फिर उसके बाद आपने डी डाला, प्रेडिकामेंट का मेंट, इसके बाद हम डालेंगे मेंट, सॉरी यहाँ पे प्रेडिका, ये यहाँ पे ले नहीं रहा, इसको पी डालेंगे, फिर के डालेंगे, फिर डी डालेंगे, प्रेडी हो गया ना, सॉरी एक सेकेंड, तो देखो आपने लाइन डाली, प्र डाला, डी डाला, ठीक है ना, फिर के डाला और मेंट डाल दिया, ठीक है। तो मैं क्या कर रही थी, मैं पहले आपके लिए के डालने लगी थी, जो गलती था, प्रे, ठीक है, फिर डी का, ठीक है, प्रे डी का मेंट, ये आपका आउटलाइन होगी, ई की बिंदी डाल दो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अनकंसर्न, ठीक है। अनकंसर्न में आपने क्या करना है, अन के लिए अबव द लाइन पे रहो, यहाँ पे कंसर्न डाल दो, इसको काट दो, ठीक है। ऐसे करके इसकी आउटलाइन की तैयारी करना, अनकंसर्न की अन, और नीचे आएगा कंसर्न, इसको काट दो। हमेशा जब भी आपके पास ईडी आता है ना, तो ईडी के लिए आप इसको काट सकते हो, ठीक है। और ये ऊपर अन की
वॉवल आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है डिफॉल्टिंग। तो डिफॉल्टिंग के क्या करेंगे, डी कर दो, ठीक है, उसके बाद एफ कर दो, उसके बाद एल कर दो और इंग कर दो, ठीक है। तो डिफॉल्टिंग में यहाँ पे एक ही बिंदी डाल सकते हो और ये नीचे आएगा इसके, ठीक है। ये आ गया आपका डिफॉल्टिंग। और याद रखना एफ के बाद ये जो एल है ये छोटा है, ये क्या है, ये छोटा है, तो इसको कर्व में लेके छोटा करना है एफ से, ठीक है। अब आ जाओ आगे। डिफॉल्टिंग के बाद आता है फ्रॉम द सेंटर। तो आपने क्या करना है, फ्रॉम करना है, टिक लगानी है, टिक लगा के यहीं से सेंटर बना दो, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर। चलिए, उसके बाद आता है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट कैसे लिखना है, एल फिर जी, सॉरी ये जरा इसमें आ जाता है एल फिर जी, लेजिटिमेट, जस्ट ए मिनट, एल के बाद जे और उसके बाद मेट। ये छोटे छोटे जो एरर हो जाते हैं इसको कंसर्न मत करना क्योंकि हमारी पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी प्रकार हम लिखेंगे एल फिर जे, ठीक है, फिर मेट ली, ठीक है, समझ गए। एल जे छोटा, फिर एम छोटा और उसके बाद ली, ये नहीं है तो हमने क्या पढ़ा, लेजी, ये एल हो गया, फिर जे नीचे, फिर एम और लेजिटिमेटली, ठीक है, ऐसे आपने डालना है। उसके बाद आता है वीकर सेक्शंस। वीकर सेक्शन में क्या करो, डब्ल्यू डालो, के डालो, एस डालो, शंस डालो, बस वीकर सेक्शंस, ठीक है। उसके बाद अगर आ जाता है वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, तो वीकर डालो, सेक्शंस डालो, सेक्शंस के बाद ऑफ द है ना, तो दा की टिक डाल लो, ठीक है। वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ऐसे काट दो। तो सोसाइटी जब भी आता है तो उसको आसानी से आप ऐसे से काट सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है रूरल एरियाज में लोग ऐसे भी लिखते हैं और रूरल एरियाज में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ये थोड़ी ज़्यादा एडवांस हो जाती है, तो यू कैन कट इट डाउन, इसको ऐसे करा सकते हैं, ठीक है, रूरल एरियाज, ओके। उसके बाद देखो अर्बन एरियाज, बहुत इजी है ये, इसको आप यू कैन टेक दिस अर्बन एरियाज, ऐसे आपने अर्बन डाला, ठीक है, अर्बन डाला बेटे, उसके बाद आप इसको बंद कर दो और ये का वोवल डाल दो। ये जो ये का वोवल है यहाँ और यहाँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये का वोवल डालते ही आपको एरियाज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब आता है एम्प्लॉयमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं, एम्प्लॉयमेंट आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आ गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो बस ऊपर गोला डालो, ठीक है, ऊपर आपने गोला डाला सेल्फ का और नीचे आपने एम्प्लॉयमेंट डाल दिया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आ गया, ठीक है। अब हम एम्प्लॉय पे आते हैं। एम्प्लॉय पे हमेशा ओए का वोवल आपने डालना है, एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय आ जाता है तो एम्प्लॉय में ओए का वोवल आप डालो ना डालो, ये ई की बिंदी जरूरी है। एम्प्लॉय ओए के वोवल से हमें जल्दी पता लग जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय में ई की बिंदी आ गई। और मैं आपको एक और इसमें चीज बताती हूँ विच इज टू बी क्लियर्ड। एम्प्लॉय कर दिया, ठीक है, हाँ, अनएम्प्लॉयड एक वर्ड है, अनएम्प्लॉयड, तो यहाँ पे ओए का वोवल करके ये करो, ये आ गया आपका अनएम्प्लॉयड, ठीक है। उसके बाद आता है इनिशिएटेड, जल्दी से देख लेते हैं। इनिशिएटेड, ये का वोवल जरूर डालना है इनिशिएटेड में, ठीक है। एस द हाउस इज अवेयर, ठीक है, ये तो की होगी आपने। उसके बाद सिंपल वर्ड आता है जनरल, ठीक है, यहां तक रखो, क्या लिखोगे, जनरल, अब ऑन द लाइन, ठीक है। और जब आता है जनरली तो क्या करना है आपने, बस यहाँ बिंदी डालो। ये नहीं कि अपने आप को ज्यादा उस्ताद बना के अपने आप पढ़ने की कोशिश करो, बिंदी डालो, हेल्पिंग हैंड ले लो, ठीक है। एनवायरमेंट कैसे लिखना, हमेशा ये जीरो बीच में आपने छोटा सा डालना है, सेल्फ वाला, और एनवायरमेंट हो गया। उसके बाद एनवायरमेंटल, ठीक है, ये एल पीछे नीचे डिसजॉइन। अब आता है एलिमेंट्री एजुकेशन, बहुत प्यारा वर्ड है, ठीक है। आपने क्या वर्ड किया, एलिमेंट्री एजुकेशन, ये ओए का वोवल भी आप ओए का वोवल डाल सकते हो, इट इज नीडफुल और नॉट, दिस इज योर चॉइस, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया। अब आता है फंक्शन। तो फंक्शन कैसे लिखना, बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे ये आपने सिर्फ एन और शन डालना है। इसकी आउटलाइन की बड़ी प्यारी प्रैक्टिस कर लो, दिस इज फंक्शन, ठीक है। अब आता है फंक्शनिंग, यहाँ पे आपने बिंदी डाल दो, यहाँ पे शन डालोगे तो शन की बिंदी भी तुम्हारे काम आ सकती है, लेकिन अगर एक बारी हाथ फ्लो में आता है तो फंक्शन और फंक्शनिंग में प्रॉब्लम नहीं होती। इंग की बिंदी बहुत जरूर डालना जब फंक्शनिंग आएगा, ठीक है। अब लमसम तो पता है, लमसम, ठीक है, बहुत ईजी है। अब उसका वोवल डाल दो, ठीक है। अब आता है फॉर दिस, ठीक है, फॉर दिस पर्पस, ठीक है। तो ये आपने फॉर दिस पर्पस कर दिया, कुछ नहीं है। और सब्सटेंशियल, ये आप ऊपर ले गए, सब्सटेंशियली में बिंदी डाल दो, ठीक है, ये आपका LLY हो जाएगा सब्सटेंशियली में,
ठीक है। अब वर्ड आता है एलोकेशंस, तो नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ए की बिंदी डालेंगे जरूर, ठीक है। और अगर आपको प्रॉब्लम और होती है तो आप यहाँ पे बिंदी डाल सकते हो एक और, कि मेरे को के नीचे बिंदी डालनी है। ब्रीफली, ठीक है। अब ये आपने कर दिया ब्रीफ, ये क्या है ब्रीफ, ये क्या है बेटे ब्रीफ, ठीक है। और ये क्या है ब्रीफ, ये अब आपने क्या करना है ब्रीफली, यहाँ के ये दिस इज ब्रीफली, ठीक है। उसके बाद एनुअल प्लान, यहाँ पे इकट्ठा कर दो, एक ही बिंदी डाल दो, अब अवधि लाइन लिख दो, एनुअल प्लान हो गया, ठीक है। अब आपने आउटले करना है, ठीक है। आपने आउट करके और यहाँ पे ले कर दो और आउ का वोवल डाल दो, ये बन गया, ठीक है। आउट ले आउ का वोवल, ठीक है। अब ये तो पता ही है तुम्हें, आर नेसेसरी में बिंदी डाल दो, आर नेसेसरी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आ गया अनअवॉइडेबल, अवॉइडेबल, ठीक है, अनअवॉइडेबल, बस फिनिश। और यहाँ पर आपका अनअवॉइडेबल तक हम फिनिश करते हैं। इनको प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद मैं आपको लाइनों से समझाऊंगी कि कैसे एरर्स को दूर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़रूर आपने मेहनत करनी है। कमेंट करके मुझे बताना आपको सारा समझ आएगा नहीं। इफ़ देयर इज़ एनी वर्ड लेफ्ट तो मस्ट टेल मी, ठीक है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगी। और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बेस्ट ऑफ लक।